जी participants, Bismillahirrahmanirrahim. Today is the last class of this session. Today is the busiest day for us to complete our 2-3 assignments today. Number one, the lecture number 29 and the lecture 30th will simultaneously be finished today, are completed today. I have to give you people the solution of one question paper today also. And in addition to this, certain other things can be exchanged between you and me from the examination point of view. उसके बाद I'll say goodbye to you people to appear in the exam. Let we wait for 1-2 minutes so that the number of participants may reach to 150. कामरान अली, आपका ऑफिस कौन सा है और कहाँ से हैं आप? पार्टिसिपेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो पहला पार्ट 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आज का लेक्चर तो पहले पार्ट के अंदर आई विल डिस्कस द थिंग्स अबाउट द कोर्ट केसेस. You are very well familiar with this fact that sometimes government has to appear in the courts. Federal government जो है, so what sort of instructions are required for the federal government to follow? Are the departments whose cases government has to fight in the court? तो इस सिलसिले में government has given the instructions to be followed while contesting the courts in the contesting the legal proceedings या suits in the courts. तो ये आपकी बुक जो है सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपको ये मिलेगी. लेट मी टेल यू के सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन की आप देखिएगा. ये आपका है कंडक्ट ऑफ केसेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन कोर्ट्स. उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस जो हैं, these have been given in appendix F in the secretariat instructions. Please open your book and have a first-hand information of the book secretariat instructions, in which this topic is the last topic
of your book that I am discussing and sharing with you people today. Appendix F, or this is the last topic of your book Secretariat Instructions. इसके अंदर क्या है कि whenever a necessity arises that government has to appear in the court, certain instructions have been laid down by the government in the Secretariat instructions to be followed religiously while processing या proceeding your case, court cases. तो सूट जिसे लीगल प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं, उसके लिए पहली जो इंस्ट्रक्शन है महकमों के लिए वो ये है कि नो सिविल सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स shall be instituted or instituted on behalf of the federal government by any division department without the prior consultation with the law and justice division. कोई महकमा जो है फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर जब तक वो महकमा जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को कंसल्ट नहीं करेगा. This is the basic condition that has to be followed by the divisions or departments. So whenever you are going to contest the case in a civil court against the federal government, तो आपको लॉ एंड जस्टिस डिवीजन में जाना पड़ेगा. You will have to get the consultation, you will have to get the advice of the law and justice division whether this case is to be legally okay है या कि नहीं है. तो you will have to consult the law and justice division. दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है वो आपने ये देखना है कि when the administrative division या department जो है concerned considers it advisable that a suit or legal proceeding be instituted or initiated on behalf of the government, a detailed and clear report should be furnished to the Justice Division showing जो रिपोर्ट आप जो बनाएंगे लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को बेचने के लिए, उसके अंदर मुंदरजा झैल चीजें जो हैं उनको मद्देनजर रखना होगा. The circumstances which, in the opinion of the administrative division department, render the institution of the suit are legal proceedings. वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके तहत डिपार्टमेंट जो है वो कोर्ट में जा रहा है? वो सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को, डिवीजन को. बी पॉइंट है द सब्जेक्ट ऑफ द क्लेम एंड द रिलीफ सॉट. क्लेम जो बनता है उसके ऊपर उसका क्या सब्जेक्ट है, किससे मुतल्लिका है? कोई लीगल पॉइंट है, सर्विस मैटर है, या कोई फाइनेंशियल मैटर है, या कोई लॉ पॉइंट है? वो देना पड़ेगा कि आप उसमें से किस में रिलीफ चाह रहे हैं उसकी वजाहत करें. सी पॉइंट है द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन सो फॉर टू ऑब्टेन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम. कि कोर्ट में जाने से पहले you will have to see कि what sort of efforts have been taken या steps have been taken by the department क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए क्या स्टेप्स आपने पहले लिए, इसकी डिटेल भी आपको लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को देना पड़ेगा. Then D point है the pleas or objections if any which have been urged by the opposite party against the claim.
वो कौन से ऑब्जेक्शंस जो हैं जो कि रेज किए हैं ओपोनेंट पार्टी ने, जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा रहे हैं, ये चीजें भी आपको उस रिपोर्ट के अंदर शामिल करनी पड़ेगी जो कि आप लॉ एंड जस्टिस रिव्यू को दे रहे हैं। ई पॉइंट है द एविडेंस विच इज बिलीव टू बी obtainable एंड विच इज प्रपोज टू adduce इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम। adduce मीन्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, एड्यूस भी लिख सकते हैं आप, प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर, कि वो एविडेंस देना पड़ेगा जो कि आपके क्लेम को सपोर्ट कर रहा हो अदालत के अंदर। यू विल हैव टू पिन पॉइंट इट एंड पुट बिफोर द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के जनाब ये क्लेम है हमारा जिस पर हम जाना चाहते हैं कोर्ट के अंदर। एनी अदर फैक्ट्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या डिपार्टमेंट में कंसिडर मटीरियल आर रेलेवेंट टू द केस। कोई यानी पॉइंट जो आप समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको इसके अंदर बयान करना जो है वो रिपोर्ट के अंदर जरूरी हो जाता है। जी पॉइंट, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल are securities from which it is proposed to realize the amount claimed if decreed। वो क्लेम जो आप किए जा रहे हैं उसमें क्या कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, मूवेबल या इमूवेबल है, या किस टाइप की, कोई किसी टाइप की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी से मुराद जो है वो ये चीज जो है ये भी डिवीजन या डिपार्टमेंट को जो कि कोर्ट में जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ही हैज टू प्रोड्यूस इट इन द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट जो है मुबीन, आप अपना क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर लिखिएगा। तीसरा पॉइंट जो मद्देनजर रखना है, copies of all documents referred to in the report should as far as possible accompany the report। The report that is to be produced in the law and justice division, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां साथ लगी होनी चाहिए। Where for any reason the copies cannot be supplied, the original should be submitted। This is the third main points that has to be followed while submitting the cases in the court, and prior to that occasion you will have to submit all the copies of the documents in the land justice division। Fourth point, major point जो है, if the land justice division agrees, it will nominate a counsel to file and conduct the suit or legal proceedings। अगर लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है वो समझेगा कि ये केस जो है ये ठीक है, तो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है उसको ओके कर देगा और अपना एक काउंसिल जो है, काउंसिल कहते हैं एडवोकेट को, वकील को। फेडरल गवर्नमेंट होगी तो उसके अंदर उसके वकील को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। सीनियर लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, उसके नीचे डिप्टी अटॉर्नी जनरल होती हैं, उसके नीचे जो है वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल होते हैं। और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी तो उसके अंदर एडवोकेट जनरल होता है, फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल होता है, फिर डेप्टी जो है एडवोकेट जनरल, और फिर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। और ये तरीकाकार जो है जो गवर्नमेंट ने ये केसेस जो हैं ये इस टाइप के ये फॉलो करने पड़ती हैं इंस्ट्रक्शंस बिफोर द लीगल प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड इन द कोर्ट। अब ये इंस्ट्रक्शन जो हैं, दीज आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग बिफोर द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन
जिसने ये फैसला करना है कि आपका ये केस ठीक है, और वी नॉमिनेट एन एडवोकेट जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर वहां आपको असिस्ट करेगा। अब ये सूट जो है या लीगल प्रोसीडिंग्स जो है, उसके डिफेंस के लिए की सूरत में जब गवर्नमेंट ये देखेगी कि क्लेम जेन्युइन है दूसरी पार्टी का, जिसके अगेंस्ट हम हायर कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तो वो इसको डिफेंड नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट ये समझती है, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ये समझता है कि केस जो है वो गवर्नमेंट के हक में है, most of the points are favorable and support the context of the government, तो law and justice division will give the okay report to plead the case in the court, और अपना लीगल क्लेम जो है अपने काउंसिल के थ्रू वो डिफेंड करेगी। दिस इज अबाउट द केसेस। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसके आगे डिटेल के अंदर सब हेडिंग्स मौजूद हैं, क्या क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन आई हैव टेकन द इनिशियल टू मेन हेडिंग्स। इंस्ट्रक्शंस कौन सी फॉलो करनी पड़ेंगी बिफोर ए सूट इज फाइल्ड इन द कोर्ट, इसी पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर बाकी क्वेश्चन अगर आए तो वो तो मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक ये सवाल आपका इम्तहान में नहीं आया, और ये इम्तहान में आने के नंबर वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस इख्तियार करती है कोर्ट में जाने के लिए, और कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। ये चीज़ें जो हैं, इस एंगल से आई गिव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस टू दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड दिस टाइम इन द एग्जामिनेशन। If you are further in the quest of knowledge, you may consult your book Secretariat Instructions, जिसके अंदर फर्दर इसका प्रोसेस जो है वो बुक के अंदर दिया गया है। लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी मैंने सिर्फ ये जहन में रखा है कि चूंकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए अगर आया भी तो इतना ही पोर्शन आएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना होंगी। तो प्लीज फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्तहान के लिए आप मार्क कर लें। पार्ट टू आज का जो है लेक्चर का, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज ऑफ रेड इंक इन गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इस पर भी जो है इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं कि आप रेड इंक इस्तेमाल अमूमन नहीं कर सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज ब्लू इंक या ब्लैक इंक। रेड इंक का इस्तेमाल जो है वो सर्टेन केसेस में गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। वो कहाँ अलाउ किया है आपको, प्लीज उसके लिए आप देखिएगा सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन एनेक्सियर 9 पेज 111। जो मेरे पास बुक है उसमें पेज 111 है, 111। उसमें सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास जो बुक का हो सकता है कि पेज आगे पीछे हो,
तो आप जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज ऑफ रेड इंक इन गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, ये आप देख सकते हैं। अपनी बुक खोलिए और उसमें ये नोट कीजिएगा। एनेक्सर 9, इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज ऑफ रेड इंक। तो रेड इंक को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर चार उन्होंने मेजर जो हैं वो एरियाज बताए हैं जिसमें आपको रेड इंक के इस्तेमाल की इजाजत है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप रेड इंक इस्तेमाल करेंगे या ब्लू इंक इस्तेमाल करेंगे या ब्लैक करेंगे। तो रेड इंक के बारे में हमें बताइए कुछ। एग्जामिनर में आस्क द क्वेश्चन बिकॉज इट इज द टॉपिक इन योर सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस। पहला एरिया क्या है कि ट्रेजरी रूल वॉल्यूम 1 के अंदर इसके इस्तेमाल के बारे में दिया हुआ है। दूसरा एरिया जो है वो है सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें 5 जगह के ऊपर आपको इसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी हुई है और गवर्नमेंट ने। वो कौन सी है उसकी डिटेल जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपने जो एसीआर फॉर्म है, राइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एज प्रिंटेड ऑन एसीआर फॉर्म्स, उसके अंदर भी रेड इंक के इस्तेमाल का गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। चौथा एरिया वेयर रेड इंक इज अलाउड टू बी यूज्ड इज इनकम टैक्स ऑफिस मैनुअल। इनकम टैक्स ऑफिस मैनुअल के अंदर भी एक जगह के अंदर रेड इंक का इस्तेमाल है। ये चार एरियाज जो हैं government has allowed us to use रेड इंक। अब हम इन चारों एरियाज को थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल देखते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन का आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। पहला एरिया मैंने बताया कि ट्रेजरी रूल वॉल्यूम 1 के अंदर कहाँ रेड इंक इस्तेमाल करने की इजाजत है। ए पॉइंट है कि रूल 138 के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ट्रेजरी रूल्स वॉल्यूम 1, रूल 138, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन एंड फॉर्म ऑफ बिल्स शैल बी ऑब्जर्व्ड। उसका सब पॉइंट 4 है जिसमें आपने क्या करना है। इरेजेस एंड ओवर राइटिंग इन एनी बिल आर एब्सोल्युटली फॉरबिडन एंड मस्ट बी अवॉइडेड। आपने अपने बिल के अंदर किसी चीज को मिटाना नहीं है, ना उसको ओवरराइट करना है। उसके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर करेक्शन जरूरी है तो आप इनकरेक्ट एंट्री को आप कैंसिल करेंगे नीटली इन रेड इंक, क्रॉस करेंगे, कैंसिल करेंगे उसको एक लाइन लगा के रेड इंक से, और उसके साथ करेक्ट एंट्री जो है वो आप लिख देंगे और साथ अपने इनिशियल कर देंगे। अगर रूल नंबर 297 उसकी जो क्लास 2 है उसके अंदर लिखा है कि एवरी सब वाउचर which under the provisions of section 4 of this chapter is not forwarded to the accountant general or to a controlling officer along with bill but is recorded in the office to which the expenditure relates must be duly cancelled by means of a rubber stamp or by an endorsement in red ink across the voucher।
The cancellation being initiated by the officer authorized to draw the contingent bill of the office. ये दो जगह ऐसे दी हुई हैं, दो तरीकाकार जो हैं, ये आपने रेड इंक के इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि यू विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ट्रस्टी रूल हो गया, और दूसरा है सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस। इसका ये नंबर जो है ये 2 है। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन के अंदर अपेंडिक्स ई पैरा 43B, page number should be entered consecutively on all pages of correspondence in black or red ink। हमारी जो फाइलें होती हैं उसके अंदर नंबरिंग जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस साइट की फाइल के जो पेपर हैं उनके अंदर आप रेड इंक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैक इंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लू इंक नहीं करते। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि हम रेड इंक का इस्तेमाल जो है अपने पेजेस की नंबरिंग के लिए फाइल के अंदर अलाउड है हमें इस्तेमाल करना। ब्लू पेन से नहीं करेंगे, ब्लू इंक से नहीं करेंगे, लेकिन दीज इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट इन आवर ऑफिसेस। हम ब्लू से ही उसकी पेज मार्किंग कर देते हैं। तीसरा पॉइंट जो है उसके अंदर instructions for writing and maintaining confidential reports as printed on ACR form। ECR फॉर्म के अंदर भी रेडिंग का इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। ECR फॉर्म का जो कॉलम D2 है, if you consider that a particular remark of the reporting officer is wrong and should be expunged, score it out in red ink, initial the scoring and add any other remark which you may consider appropriate। ACR फॉर्म के अंदर ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी होती है। उसका चौथा रूल जो है वो अंडरलाइन इन रेड इंक रिमार्क्स विच इन योर ओपिनियन आर एडवर्स एंड शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफिसर कंसर्न। अगर कोई एडवर्स रिमार्क्स हो जाएं तो उसको आप अंडरलाइन करें रेड इंक से, और उसको कम्युनिकेट होना चाहिए जिसके बारे में रिपोर्टिंग अफसर ने वो एडवर्स रिमार्क्स दिए हैं। तो दीज आर द टू प्लेसेस ACR फॉर्म के अंदर जहां रेड इंक के इस्तेमाल की इजाजत है। चौथा पॉइंट जो है जो यहाँ पर हम इनकम टैक्स ऑफिस मैनुअल 1961 का एडिशन जो है इनकम टैक्स ऑफिस मैनुअल का, everything is written in your secretariat instructions कि areas demand brought forward on areas demand। ये वर्ड एरियर्स है,
Arrears demand brought forward on the 1st April, 1st of July from the preceding year. The entries in respect of these demands should be made in red ink. Except the demand which it should be in the black at the beginning of the register. ये आपकी सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन में है कि आपने एरियर जो है पिछले साल का उसकी एंट्रीज को आगे लाना है तो आप रेड इंक इस्तेमाल करेंगे. Number two, the clerk concerned as he receives the IT income tax manual order receives the IT 93 slip from the head clerk will enter the slip in the register of information slips and then record in red ink on the order sheet of the file concerned the number and date of the communication slip and name of the office from which communication or income tax 93 slip originated. In a simplest way, when you are asked कि आप कहाँ कहाँ रेडिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं तो दीज आर द 4 एरियाज जहां आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. आपके इसको अपनी सेक्रेटेरियल इंस्ट्रक्शन की बुक को भी आप जब फॉलो करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस डिस्टिंक्शन एंड दिस वुड बी ए न्यू. तो ये जो 4 एरियाज हैं ये भी मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर 3-4 नंबर का क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकता है आपसे कि कहाँ कहाँ रेड इंक आपको इस्तेमाल में लानी चाहिए. With this, I came to the end of today's lecture number 29. अब मैं आपके साथ लेक्चर जो है वो 30 शुरू करूंगा और उसके बाद फिर हम कोई अपने क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो उसको शुरू करते हैं. तो हैव ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. मैं आपका दूसरा लेक्चर जो है उसको यहाँ लगा लूँ और फिर हम आगे चलते हैं.
जी पार्टिसिपेंट्स, हमारा लेक्चर 30 जो है वो एक कुछ इस तरह से है। दिस इज द लास्ट लेक्चर इन द सीरीज ऑफ आवर सिलेबस। इसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में हमने पढ़ना था। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो है वो प्लीज, ये आपका लेक्चर जो है वो 12 है। लेक्चर 12 के अंदर मैंने आप अपने मोबाइल के ऊपर अगर खोलेंगे तो लेक्चर 12 जहां खत्म हुआ था वहां पर मैंने दिया था कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, लेकिन आगे उसकी तफसील नहीं दी गई होगी। तो उसके साथ आप मिलाएं जब, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ये आज का लेक्चर है। इट इज कनेक्टेड विद योर लेक्चर नंबर 12 इन द सीरीज। तो वहाँ तफसील इसकी नहीं आई थी। आज उसकी तफसील जो है वो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको दे रहा हूँ। तो ये लेक्चर 30 जो है ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आई हैव प्लेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में, और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको वो कुछ एब्रिविएशंस रखी हैं जो कि हम अपने नोटिंग पोर्शन के अंदर, फाइल के अंदर हम इस्तेमाल में लाते हैं या ला सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ हमें अलाउ किया है। तो पहला पार्ट जो है, पहले हम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी डेफिनेशन वाइल कीपिंग इन व्यू हम देखते हैं। बाय ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी मीन the channels through which messages pass from one person to another within the entity। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करने का तरीकाकार है। कि एक अदारा जो है उसके अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे काम करता है। दीज आर द पाथवेज along which information flows to groups and 1 minute। ग्रुप्स एंड टीम्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको इस्तेमाल में लाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो हैं उसके फ्लो के बारे में, उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो मल्टीपल होती हैं। अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, और डायगोनल भी होती है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाट इज meant बाय द टर्म कम्युनिकेशन नेटवर्क। These communication networks can be formal or informal. In either case, it is a network that connects senders and receivers। अब आपका लेक्चर 12 जहां खत्म हुआ था वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के ऊपर खत्म हुआ था। अगेन आई एम मैंने डेफिनेशन दे दी, मैंने उसका डायरेक्शंस दे दी, और अब इनको मैं आपके सामने फॉर्मल और इनफॉर्मल की सूरत में इसको आ, आ, हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो चॉइस ऑफ नेटवर्क जो है वो ये है कि किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। योर चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप्स टास्क। आप किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसके मुताबिक नेटवर्क आप जो है वो चूज करते हैं। या
Number two, the extent to which group members need to communicate with each other to achieve group goals. ये चॉइस है आपकी कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आपका काम तो नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का काम होता है, लेकिन यू मस्ट नो दिस थिंग कि ये क्वेश्चन इम्तहान के अंदर आपको आया भी है और दोबारा इस साल आपके एग्जाम में फिर आ सकता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क के फंक्शंस कौन से होते हैं? प्रोवाइडिंग, नंबर वन, providing the means for organizing the activities of the individuals, groups and other subunits within the organization, ताकि आप स्टे कनेक्टेड रहें एक दूसरे के साथ। ये पहला फंक्शन है नेटवर्क का। नंबर टू फंक्शन इसका ये है, इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ये एक इंस्ट्रूमेंट के तो आले के तौर पर इस्तेमाल होता है कि आप अपने अदारे की जो सरगर्मियां हैं उसको किस तरीके से आप चला सकते हैं। नंबर थ्री फंक्शन इसका है, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ये फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जो है किस तरीके से हो सकती है, जा सकती है या कम्युनिकेट हो सकती है। चौथा फंक्शन जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क का, वो इंश्योर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके बाहर भी ये आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो मददगार होता है। ये भी इसका फंक्शन है। चार फंक्शन है इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? डिफाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क, what are its functions, write a detailed note on informal networks। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन अगर 15 नंबर का आ गया है तो आपको इनफॉर्मल नेटवर्क जिसकी 5-6 किस्में हैं उनको भी, और इनफॉर्मल नेटवर्क की एक किस्म है जिसको ग्रेप वाइन कहते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अगर 15 नंबर का हो तो फिर सारा मटेरियल आपको देना पड़ेगा। और अगर सिर्फ क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो डेफिनेशन है, फंक्शंस हैं नेटवर्क के, या आपके जो हैं क्या कहते हैं उसको टाइप्स को डिस्कस करें, तो एक किसी टाइप को दे दें तो फिर नंबर कम है तो आप उस लिहाज से अपने क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं। 12 इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स, डेफिनेशन और फंक्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो है कम्युनिकेशन की वो दो टाइप की होती है। एक फॉर्मल नेटवर्क होते हैं, एक इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं जो कि हमारे अदारों के अंदर चलते हैं। फॉर्मल नेटवर्क पहली किस्म को हम लेते हैं जब, तो फॉर्मल नेटवर्क्स विद इन एन एंटिटी टेक्स प्लेस थ्रू अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स। ये अप्रूव्ड चैनल्स होते हैं। दीज चैनल्स आर सैंक्शनड ऑफिशियली एंड आर रिफ्लेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। The organizational chart defines the hierarchical arrangements and the reporting system in the organization. फॉर्मल नेटवर्क के बारे में है, when you are writing something in detail about the formal networks, you will have to reproduce this paragraph in the paper. अब ये दो किस्में मैंने बताई थी, एक फॉर्मल नेटवर्क्स थे, फिर इनफॉर्मल दो किस्में थी। फॉर्मल नेटवर्क की डिटेल जो है वो अब आ रही है। तो फॉर्मल नेटवर्क के अंदर 5 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं उसकी मेजर टाइप्स? चेन नेटवर्क है, वाई नेटवर्क है, व्हील नेटवर्क है, सर्कल नेटवर्क है, आर चैनल नेटवर्क या स्टार नेटवर्क। फॉर्मल नेटवर्क्स की ये 5
टाइप्स हैं। अब हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। चेन नेटवर्क, ये नंबर वन पर चेन नेटवर्क था। अब इसकी तफसील है कि चेन नेटवर्क जो है उसकी खसूसियात क्या होती। इन चेन नेटवर्क information is passed straight up or down the formation chain of command। आप एजी ऑफिस में काम कर रहे हैं। एजी ऑफिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके अंदर चेन ऑफ कमांड आपकी क्या है कि एजी ऊपर बैठा है, नीचे एडिशनल एजी है, नीचे डीजी है, एडिशनल एजी है, फिर डेप्टी एजी हैं, फिर असिस्टेंट एजी हैं या एओ है। तो इंफॉर्मेशन या ऊपर से नीचे आएगी तो इन्हीं चैनल से नीचे आएगी। और जब इसको कहते हैं डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन। अपवर्ड जब जाएगी तो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल या अकाउंट सॉरी अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि एक ही ग्रेड में होते हैं तकरीबन। लेकिन आजकल तो अकाउंट्स ऑफिसर जो है ग्रेड 18 में होता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल ग्रेड 17 में होता है। तो इंफॉर्मेशन कहने का मकसद ये है कि एजी से डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन आएगी तो ये चेन नेटवर्क होगा। जब नीचे से ऊपर जाएगी तो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन एजी तक पहुंचेगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस चेन नेटवर्क की ये है कि वन पर्सन पासिस द इंफॉर्मेशन टू अदर्स। या वो अप भेजेगा या डाउन भेजेगा विद इन द लाइन ऑफ हायरार्की, who then pass it further up down their own chain of authority। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि इट अलाउज ओनली वर्टिकल मूवमेंट एंड इज स्ट्रिक्टली हायरार्किकल। वर्टिकल मूवमेंट होती है इसकी, ऊपर जाना होता है या ऊपर से नीचे आना होता है। इट इज कॉल्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियत या खूबी ये है कि चेन नेटवर्क्स हैव ए लीडर हु डिसाइड्स as to what messages are to be sent and how these messages are to be communicated। मीन्स चेन नेटवर्क के अंदर एक लीडर होता है। आपके अकाउंट्स ऑफिस के अंदर एक लीडर है, वो है एजी। वो डिसाइड करता है कि मैसेज ने किस तरीके से कैसे मूव करना। नंबर 5, ईच मेंबर कम्युनिकेट्स विद द पर्सन अबव एंड बिलो। डेप्टी एजी जो है वो कम्युनिकेट करता है, जब तो ऊपर कम्युनिकेट करेगा तो वो एडिशनल एजी के साथ करेगा। वो नीचे कम्युनिकेट करेगा तो वो अपने असिस्टेंट एजी को या अकाउंट्स अफसर के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। वो डायरेक्ट जो है वो सीनियर ऑडिटर या अकाउंटेंट के पास नहीं आएगा। ये चेन नेटवर्क का है कि वो हायरार्की को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप मिस नहीं करते। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि चेन नेटवर्क is suitable for tasks that have to be accomplished within a given time and without any deviation। इसको मद्देनजर रखते हुए चेन नेटवर्क जो है वो तश्कील दिया गया है कि टाइम के अंदर काम मुकम्मल हो जाए और उसमें से कोई इधर उधर डिविएशन ना हो। आठवीं कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट डज फेस द रिस्क ऑफ लूजिंग सम पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एवरी सक्सेसिव लेवल। आपने देखा होगा कि ऐसी सूरत के अंदर अगर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ओरल है, बातचीत जबानी हो रही है, एजी ने अपने एडिशनल एजी को कोई बात बताई कि ये काम ऐसे कर लें,
एडिशनल एजी ने या डप्टी को पास ऑन की इंफॉर्मेशन, तो हो सकता है कि कुछ पोर्शन उसमें से मिस हो गया हो, चांसेस आर देयर। देन लास्ट तक जब पहुंचेगी तो शायद उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ गया हो। ये रिस्क जो है चेन नेटवर्क के अंदर पाया जाता है। नाइन्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, द पर्सन एट द बॉटम में फील आइसोलेटेड एंड लेस मोटिवेटेड। एक्चुअली व्हाटसोएवर द पॉलिसी इज डिवाइस्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो टॉप लेवल के ऑफिसर जो हैं वो बैठ के पॉलिसी की तश्कील करते हैं। वो तश्कील एजी ऑफिस के अंदर अगर कोई डिसिप्लिन का सिस्टम जो है वो देखना है, या कोई एनी अदर टाइप ऑफ जो उन्होंने उसको देना है, शेप अप करना है उन्होंने, तो एडिशनल एजी बैठेगा और उसके अंदर एजी बैठेंगे, उसके नीचे एडिशनल एजी साथ मीटिंग रूम में बैठ जाएंगे, डीजी बैठ जाएंगे, और आपके डिप्टी एजी, वो असिस्टेंट एजी को नहीं बुलाते। तो असिस्टेंट एजी या अकाउंट्स अफसर जो है वो फील करेंगे कि उनको इस डिसीजन में या पॉलिसी शिप अप करने के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो दे फील लेस मोटिवेटेड। तो ये एक खराबी इसके अंदर है। एनी हाउ, डिस्पाइट द फैक्ट दिस, मतलब कि खराबी जो है हम जहन में रखें, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो देती हैं। तो whenever you are asked के define communication network, give its main types। मेन टाइप जब आएगी तो वो एक फॉर्मल नेटवर्क आएगा और इनफॉर्मल नेटवर्क का। फॉर्मल नेटवर्क के अंदर 5 पॉइंट जो दिए हैं उनमें पहला चेन नेटवर्क है। तो वो पूछ सकता है कि सिर्फ चेन नेटवर्क के ऊपर आप लिखें। 5, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर उसने चेन नेटवर्क के ऊपर डिटेल पूछी है तो आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर उसने सिर्फ डेफिनेशन टाइप की पूछी है तो वो पहला 1, 2 पॉइंट दे के आप उसको फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि सारा डिटेल लिखनी जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एलोकेशन ऑफ मार्क्स, कि आपका क्वेश्चन मार्क्स कितने कैरी कर रहा है। अगर कम मार्क्स कैरी कर रहा है तो आप फिर लेस डिटेल देंगे, और अगर मार्क्स जो हैं वो 15 नंबर का सवाल है तो देन यू विल हैव टू गिव द ईच एंड एवरी डिटेल while answering the question। तो चेन नेटवर्क के बाद दूसरी फॉर्म है फॉर्मल नेटवर्क की, वो है वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क क्या होता है? हियर मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड वर्टिकली बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर्स इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट्स। वाई नेटवर्क के बारे में ये है कि वर्टिकली मूव का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये इंफॉर्मेशन इसकी होती है। इट इज सिमिलर इन नेटवर्क, जो चेन नेटवर्क है उसमें भी हायरार्की कर वर्टिकली होती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो चेन इसमें है, नेट वाई नेटवर्क में, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लीडर इज शेयर्ड साइमल्टेनियसली थ्रू 2 चैनल्स who in turn pass on the information outwards। आप जो टॉप पर बैठा जो आपका लीडर है, सुपरवाइजर है, वो 2 चैनल से इंफॉर्मेशन लेता है। एक जगह से वो इंफॉर्मेशन लेता है, फिर इसको चेक करता है किसी दूसरे चैनल से।
तो फिर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करता है। तीसरी करेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि दिस अरेंजमेंट कैन डिसिमिनेट द इंफॉर्मेशन फास्टर देन द चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क की निस्बत वाई नेटवर्क जो है दैट इज मोर फास्टर इन इट्स characteristics. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, तो आप वाई नेटवर्क में कहेंगे कि वर्टिकली मूव करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हायरार्किकल अरेंजमेंट को फॉलो करता है। एंड इन दिस वे इट इज जस्ट लाइक चेन नेटवर्क, बट हेयर इंफॉर्मेशन जो है वो लीडर को दो चैनल से लेता है। वो कौन कौन से चैनल है, इट डिपेंड्स upon दी सुपरवाइजर को वो कैसे लेता है, और फिर वो ऑर्डर पास करता है कि इस इंफॉर्मेशन को आउटवर्ड कैसे करना। ये बेस्ट वन वे है कि ये वाई का मतलब ये है कि दो चैनल से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो नीचे वाला जो इसका हिस्सा है वो सुपरवाइजर का है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट दो जगह से करता है और फिर उसे कम्युनिकेट करने का फैसला करता है। व्हील नेटवर्क, it is characterized by the central position of the leader with the key role to disseminate information. Communication occurs between the members and the group leader, and then group leader shares the information with all. इसकी मिसाल कुछ आप यूं समझ सकते हैं कि आपने तांगे का पहिया देखा होगा। तांगे के जो पहिया है उसमें आपने देखा होगा दरमियान में एक एक्सल सा होता है जिसके ऊपर जाके तांगे के पहिए की सारे जो जो बाजू हैं वो वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इसका नाम इसीलिए व्हील नेटवर्क रखा है। तो सारे लोग इंफॉर्मेशन वो जो जो दरमियान में जहां जाके सारे कनेक्ट होती हैं चीजें, उसको एक्सेल कहेंगे, क्या कोई भी नाम दे दें, सेंट्रल पॉइंट है, वो लीडरशिप को जाहिर करता है। सारे लोग उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर वो अपनी मर्जी से उसमें से क्या इन्फर करता है, क्या वो फैसला करता है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द लीडर, उसने डिसाइड करना है कि आगे हमने चलना कैसे है, उसने फैसला इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने। In real network, decisions can be made fast, but group moral is low since others do not take an active part in the decision making. डिसीजन तो बड़े इसमें फास्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाला अमला होता है वो इसको, उनका मोराल डाउन हो जाता है, क्योंकि लीडर ही सारे फैसले करता है। वो इंफॉर्मेशन ले लेता है स्टाफ से, लेकिन वो फैसला खुद करता है। तो व्हील नेटवर्क ये है। इसकी दो खसूसियात जो मैंने यहाँ लिखी हैं आपके सामने। व्हील नेटवर्क को हम उसकी खूबियों को, जब हम उनके पॉइंट्स को हम बयान करते हैं, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द लीडर। The leader plays the key role of disseminate the information. The primary communication occurs between the members and the group leader, and then group leader shares the information with all.
तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि इट इज ए फीचर ऑफ ए टिपिकल वर्क ग्रुप। एक वो खास ऐसा कोई नेटवर्क होता है, आमतौर पर ये फॉर्मेशंस के अंदर नहीं पाया जाता। Fifth point, decisions can be made fast, but group morale is low since others do not take an active part in the decision-making process. The leader is very important and powerful in wheel network. These are the characteristics that have to be shown or given in the wheel network. इसको आप ये खसूसियात जो हैं इनको आप जहन में रखिएगा। और इसमें भी एक स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हील नेटवर्क। इसके बाद हमारा आता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क ये है कि दिस नेटवर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हील चेन एंड वाई नेटवर्क्स। सारे लोग एक दायरे में बैठे होते हैं, जिसे आपने कभी मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा हो या इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा हो कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती। सर्कल नेटवर्क होता है जी। दिस नेटवर्क इज डिफरेंट फ्रॉम व्हील चेन एंड वाई नेटवर्क्स। दूसरी इसकी खूबी ये है कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन एग्जांपल ऑफ it is an example of horizontal and decentralized communication. The circle network assumes no leaders. इसमें कोई लीडर नहीं होता, सारे इक्वल पावर या स्टेटस के लोग होते हैं। हेयर देर इज कंप्लीट इक्वलिटी होती है सब में। द मेंबर्स कैन कम्युनिकेट विद अदर पर्सन्स टू देयर राइट एंड लेफ्ट। पांचवी खूबी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेंबर्स हैव सेम restrictions, but the circle is a less constrained condition than the wheel. Than the wheel. इसमें कम पाबंदी होती है, सारे मेंबर जो हैं इक्वली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जबकि व्हील नेटवर्क के अंदर ये ऐसा नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट है, ईच मेंबर ऑफ द सर्कल हैज द सेम अथॉरिटी ऑफ पावर टू इम्पैक्ट द ग्रुप। The core issue is that information moves rather slowly and might get distorted. इसकी ये एक खराबी जरूर है सर्कल नेटवर्क की कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो स्लो मूव करती है और उसके चांसेस हैं कि वो डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्टेड फॉर्म के अंदर आए। आठवां पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि मोराल हाई होता है, कि हर मेंबर इस ग्रुप के अंदर जो है फील करता है कि ही हैज बीन गिवन द इम्पोर्टेंस और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव बीन फाउंड इन द सर्कल नेटवर्क। देन ऑल चैनल नेटवर्क, दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ फॉर्मल नेटवर्क्स, जिसको स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। The all channel or star pattern is an extension of the circle network in that all members are equal and wield exactly the same amount of power to influence others. wield की जगह पर आप enjoy लिख सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए।
enjoy exactly the same amount of power to influence others. There is exception in this pattern that permits all group members to communicate actively with each other. This pattern allows the maximum member contribution. It is a prominent example of a self-managed team in which individual group members are free to contribute and no one assumes a leadership role. इसके अंदर कोई leadership role नहीं होता. You can follow it in letter and spirit. तो इसकी अपनी खसूसियात हैं, अपने इसके तरीक़ाकार हैं. Then नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर दूसरी किस्म है इनफॉर्मल नेटवर्क. पहली किस्म मैंने फॉर्मल की बताई थी. फॉर्मल की 5 किस्में मैंने फिर डिटेल दी आपको. अब मैं आपको इनफॉर्मल नेटवर्क, जो कि दूसरी टाइप है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की, इसके अंदर क्या चीज आती है. इसके अंदर ग्रेप वाइन एक नाम है इनफॉर्मल नेटवर्क का. बड़ा मजे का है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है और सिर्फ ग्रेप वाइन के ऊपर ही आपको पूछा जा सकता है. 5 नंबर का सवाल. तो इट इज ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ग्रेप वाइन की, वो क्या है. Following are the characteristics of grapevine. Number one, it is an informal system of communication. इसकी कोई सर पैर नहीं होता. इसका इस कम्युनिकेशन नेटवर्क का कोई ग्रेपवाइन का सर पैर नहीं होता. कहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू हुई, कहाँ किसने क्या कहा, नो वन नोस. लेकिन ये बड़ी आम है हमारी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में और हमारे दफ्तरों के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. मसलन आपके कोलीग जो हैं एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, दफ्तर से बाहर मिलते हैं, अफवाहें बड़ी जन्म लेती हैं. फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा. तो जब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से अफवाह हुई थी, तो कोई पता नहीं चलता. बहुत सी इसके नकाइस जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इसका एक फायदा ये होता है कि मैनेजमेंट को ये पता चलता है. ग्रेप वाइन, आप कह लें इसको गपशप, आम हालात के गपशप के अंदर जो है लोगों के सेंटिमेंट्स का पता चलता है. लोग क्या चाहते हैं. ये हमारा जो आजकल सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो चीज़ें चलती हैं, उससे अगर आप उसका एनालिसिस करें तो जो चीज़ ज़्यादा मूव कर रही होती है वो लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो उसका पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं. तो मैनेजमेंट, हुकूमत, ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो लोगों के सेंटिमेंट्स को वहां से वो गेज कर सकती है, वो पढ़ सकती है, वो उसको इस्तेमाल में ला सकती है. तो ये गपशप जिसका कोई सिरा नहीं होता, ये इनफॉर्मल नेटवर्क की एक किस्म है. इसके करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं. पहला करेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. ये दफ्तरों के अंदर चलती है लेकिन इसकी लिखी लिखाई बातें कोई नहीं होती. नंबर टू, इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक खास डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं करती. इट डज नॉट मेक यूज ऑफ ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. चौथा पॉइंट है, इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फॉर वन कोवर्कर टू अनदर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कोलीग्स मीट सोशल. हम कोलीग्स मिलते हैं ना दफ्तर टाइम के बाद, या दफ्तर से बाहर कहीं बैठते हैं, तो हम गपशप दफ्तर के बारे ही में ही करते हैं. Grapevine messages do not follow formal lines of hierarchy and are not controlled by the management. Grapevine messages के ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता.
Number six, it is perceived by most of the employees as being more credible and reliable than messages sent through the formal communication channels by top management. लोग इसके ऊपर ज्यादा यकीन रखते हैं, ये होने जा रहा है, ये हो रहा है। हमारे आप मुल्क के अंदर देखें, सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या खबरें हमारी चलती हैं। गवर्नमेंट ये करने जा रही है, गवर्नमेंट ये फलां के साथ ये करने जा रही है, या इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन होती है। नंबर सेवन कैरेक्टरिस्टिक जो है, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द ग्रेप वाइन नेटवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मुल्क हो, उसको अपने आवाम की, एम्प्लॉयज के मजाज की नब्ज के ऊपर हाथ रखना हो तो उनकी वो बातें सुने जो वो तन्हाई में बैठ के दफ्तरी जगह से निकल के बाहर बैठ के बातें करते हैं, टी शॉप के ऊपर बातें करते हैं, टी स्टॉल के ऊपर। तो मैनेजमेंट अगर चाहे तो लोगों की, कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है उससे वो बहुत फायदा उठा सकती है। अपने बंदे छोड़ के मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके जो अपने बंदे हैं वो दफ्तर की कैंटीन के ऊपर बैठ के ये सुन सकते हैं कि लोगों की राय मैनेजमेंट के बारे में क्या है, लोगों की राय हुकूमत के बारे में क्या है, लोगों के क्या मसाइल हैं। ये सारी चीजें वो नोट करके एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, मैनेजमेंट का आदमी उन्हें जाके वो फीड कर सकता है, बता सकता है कि सर, टॉप मैनेजमेंट को, कि लोगों के ख्यालात ये हैं, लोग ये चाहते हैं, लोगों के ये मसाइल हैं। तो ग्रेप वाइन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये इस लिहाज से पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नाइन्थ करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि इट क्रिएट्स अ लिमिटेशन एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू ascertain द ऑथेंटिसिटी ऑफ ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन। ये इसकी एक खामी है कि इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ होती हुई अफवाह हमारे तक पहुंची। टेंथ करेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इट मे आल्सो एम एट सर्विंग द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू स्प्रेड रूमर्स। इसकी एक और भी प्लेटफॉर्म जो मुहैया होता है कि जिन लोगों का खास इंटरेस्ट होता है, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं अपने कुलीग्स के दरमियान, या मुल्की लेवल पर देखें तो अफवाहों का बाजार गर्म होता है। तो को सेल्फ इंटरेस्ट जिन ग्रुप्स का या इंडिविजुअल्स का होता है वो ऐसी गपशप के अंदर से अपने मोटिव्स जो हैं उनको अचीव करते हैं, अपना इंटरेस्ट अचीव करते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेप वाइन नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 15 नंबर का आ सकता है, और इसमें से किसी एक के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ग्रेप वाइन मैं कहूँगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा व्हील नेटवर्क या चेन नेटवर्क, किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नाउ वी कम टू दी पार्ट टू ऑफ 30th लेक्चर के गवर्नमेंट के अंदर हमारे जो एब्रीविएशन नोटिंग पोर्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी। Abbreviation is used in public sector communication. Following abbreviations are used in the public sector communications. These are allowed to be used in the office topics. हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं PUC। PUC means पेपर अंडर कंसिडरेशन। के PUC फलां पेज के ऊपर लगी हुई है। FR का लफ्ज इस्तेमाल होते हैं कि दिस इज द फ्रेश FR, फ्रेश रिसीट मुराद है। अगर CORR लिखा जाए तो इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डेंस।
अगर सिर्फ यूओ लिखा जाए तो उसका मतलब है अनऑफिशियल। अगर डीओ लिखा जाए तो उसका मतलब है डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल। अगर एसएन लिखा जाए, नोटिंग के अंदर लिखा जाता है कि पीयूसी इज प्लेट एट एसएन, सीरियल नंबर इतने के ऊपर रखा हुआ है ये पीयूसी। के डब्ल्यू लिखी जाए एब्रीविएशन तो उसका मतलब है कीप विद फाइल। एल एफ एब्रीविएशन इस्तेमाल नोटिंग पोर्शन में होती है तो उसका मतलब है लिंक्ड फाइल के अंदर, लिंक्ड फाइल मौजूद है उसके अंदर फला इंफॉर्मेशन फला पेज के ऊपर लगी हुई। देन नाइन्थ एब्रीविएशन है डीएफए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ये तो आप सारे जानते ही होंगे। मेमो लफ्ज लिखा जाता है तो इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ द मेमोरेंडम। ओएम लिखा जाए तो ऑफिस मेमोरेंडम। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई हुई हैं, इनकी डेफिनेशन लिखवाई हुई है। आप अपने रूल्स ऑफ बिजनेस और इसके अंदर सेक्रेटेरियल इंस्ट्रक्शंस के अंदर इनके बारे में भी देख सकते हैं। पीपी, पीपी की एब्रीवेशन इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है प्रीवियस पेपर्स। ओ ओ लिखा जाए तो इट मीन्स ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर के बाद अगर सी आर कहीं लिखा हुआ लफ्ज मिले आपको तो इट मीन्स कैरेक्टर रोल। ई एन डी टी लिखा हो तो इसका मतलब है एंडोर्समेंट। और 16वीं एब्रीविएशन जो है वो सी, हम कहते हैं ऑफिस कॉपी फाइल के अंदर लगा दी तो उसी लिखा जाता है कि ऑफिस कॉपी ऑफ दैट कम्युनिकेशन हैज बीन प्लेस्ड एट पेज नंबर सच एंड सच in the correspondence portion of the file. Ladies and gentlemen, with this, we successfully came to the end of our 30 lectures. I have completed your syllabus 99.9%। 1% इसके अलावा कहीं और से सवाल आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। Thankful to God and your cooperation that you have extended to me टू लर्न इट वेरी वेरी सीरियस वे के अंदर आपने सारे लेक्चर्स को सुना, फिर रेस्पॉन्ड भी किया। ऑल माय प्रेयर्स आर फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो जस्ट टेक 5 मिनट्स ब्रेक और फिर मैं आपके साथ एक पेपर जो है वो उसको शेयर करता चलूँ। कोई मूड है कि कोई नहीं है? मेरा ख्याल है कि आज 2 लेक्चरों के बाद आपका अ, जी, लेट मी चेक योर क्वेश्चन आंसर बॉक्स। Thank you very much, Zainul Abidin. The comments you have written in the question answer box, आपने जो लिखी, मैं पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता, लेकिन आई एम मच इम्प्रेस्ड बाय द वर्ड्स यू हैव गिवन फॉर मी। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी कामयाबी के साथ अपना पेपर जो है वो पास करेंगे।
ये गालिब महमूद भट्टी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं सुन पा रहा है इनका, या समझ नहीं पा रहा। जी मैं पेपर कराता हूँ, मैंने 5 मिनट की ब्रेक ली है। करवाता हूँ। देखें, एक सेमिनार वेबिनार हुआ था पिछले दिनों, पिफा ने कराया था, जिसमें पेपर सॉल्व करने के मुतल्लिक़ आपको टिप्स दी गई थी। वकार हुसैन पूछ रहे हैं कि कुछ टिप्स जो हैं वो हमें दे दें पेपर के लिए। तो मैं यही आपको ये अर्ज करूंगा कि आप मेहनत करें, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत से सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। तो पेपर पास करने के अंदर भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो जस्ट टेक, अपने थोड़ा सा आराम को कम करें, अपनी घूमने फिरने को कम करें, अपने मोबाइल को कम करें, और अपने सिलेबस के ऊपर तवज्जो दें। तो यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस। गालिब महमूद भट्टी की मुझे क्वेश्चनों की समझ कम ही आती है। ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, मैं इसको आ, हमारे फिदा हुसैन हैं लाहौर से, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज meant by C in the noting? PUC placed at page 15C. C stands for correspondence. सिर्फ C आएगा तो 15C का मतलब है कि पेज नंबर 15 इन द कॉरस्पॉन्डेंस साइट। PUC आएगा तो पेपर अंडर कंसिडरेशन। 15C का मतलब ये है कि पेज नंबर 15 कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन फाइल के अंदर ये पेपर लगा हुआ है। PUC is placed at 15C। फिदा क्लियर हो गया आपको? अच्छा, मैं ये आपसे ये कहना चाहता था कि अपनी लिखाई को आप लेजिबल बनाएं कि एग्जामिनर जो है वो उसको आसानी के साथ पढ़ सके। हर क्वेश्चन जो है वो, अगर किसी आधे पेज पर क्वेश्चन खत्म हो गया तो अगला क्वेश्चन नए पेज से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर जो है वो मार्कर से लिखें, और बाकी ब्लू इंक या ब्लैक इंक से अपना पेपर जो है वो सॉल्व करें। पेपर के अंदर अगर हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स जो हैं वो अपनी मार्कर से दें, और पेपर के ऊपर मार्जिन जरूर लगाइए। मार्जिन जो है वो खूबसूरती में इजाफा करता है। हेडिंग्स जो हैं वो आई कैचिंग होती हैं, कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये क्या लिख रहा है बंदा। अगर आप अखबार की अखबार प्रिंट कर देंगे तो शायद इतने अच्छे मार्क्स हासिल ना कर सकेंगे जितना आप उसको पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज देंगे। तो प्लीज ट्राई टू मेक इट श्योर कि आप वो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स। तो उस्मान पूछ रहे हैं कि लेक्चर 29 और 30, ये मैं आज भेज दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। अब आ जाए आप क्वेश्चन पेपर। हम आज का जो है वो जो मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता था, कल मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन पेपर समर 2021, समर पेपर 2021 का है। आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं तो उसको देख लें, खोलें,
पहला सवाल है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल with within an enterprise that is performed for the commercial benefit of the organization. In addition, promote the product. In addition, business communication can also refer to how a company shares information to promote its product or services to potential customers. Elaborate. इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लेक्चर नंबर 1, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पर मुश्तमिल है। लिख लें दोबारा, इस ए पार्ट का ये 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर का सवाल जो है ये इसका जवाब जो मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था उसमें मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैंने दी थी कि कम्युनिकेशन की वजह से जो है ये चीजें जो हैं वो हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, पोटेंशियल कस्टमर। तो कम्युनिकेशन होती क्या है उसकी आप मीनिंग देंगे, आप डेफिनेशन देंगे कि कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं दैट आर हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। जो है कुछ अल्फाज जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर से भी आप लिख सकते हैं, तो दैट विल सर्व योर पर्पस। 15 नंबर का सवाल है, आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका बी पार्ट जो है वो 10 नंबर का है। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन रनिंग ऑफ ए बिजनेस। इसका आंसर जो है लेक्चर नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये इसका जवाब है। लेक्चर 2 मेरा निकालिएगा, आप पेपर के सामने आप लिख लें लेक्चर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने दिया हुआ है। आपने इस पार्ट का जवाब जो है वो वहां से याद करके देना। आगे आ जाएं। फॉलोइंग आर द following are the 6 of the most basic concepts of communication theory. Define how much importance these concepts have in making a communication effective. Sender and receiver, message, code, channel, medium, noise. इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपको लेक्चर 3 पार्ट 3 के अंदर मिलेगा। लेक्चर 3 पार्ट 3। लेकिन इसके अलावा आपको नॉइस जो है वो आपको मिलेगी लेक्चर नंबर, तो नॉट एग्जैक्टली मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मैंने नॉइस का जिक्र किया था। तो आप मेरे लेक्चर्स के अंदर लेक्चर 3 पार्ट 3 के अंदर तो मोस्टली चीजें मिल जाएंगी। अगर एक दो चीज रह जाए तो वो अगले लेक्चर्स के अंदर आपको कहीं मिल जाएगी। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो इट मीन 6 नंबर है, तो 3-3 नंबर का एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है आपसे। नोटेड डाउन, आपको इम्तिहान में आ भी सकता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप अपेंडिक्स ई खोलिए। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस अपेंडिक्स ई, ओपनिंग ऑफ ए न्यू फाइल, रेफरेंसिंग, मूवमेंट ऑफ फाइल, तीनों आपको वहां से मिल जाएंगे। 3-3 नंबर के पार्ट हैं ये सवाल। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1, रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर।
सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस पेज 6 के ऊपर रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर डिटेल के अंदर बताया है। लेक्चर 8 में पार्ट 1 के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर का सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन के अंदर पेज 6 जो कि मेरे पास 2011 का एडिशन है उसके अंदर भी दिया हुआ है। कितने नंबर इसके हैं उसके मुताबिक आप इसको अपने आंसर को नोट कर लीजिएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सी सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस, अपेंडिक्स बी, पेज 26। इसके अलावा मैंने आपको जो है वो लेक्चर भी मैंने जो दिया है उसके अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी जो है वो ये दिया हुआ है। तो सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन अपेंडिक्स बी पेज 26 के ऊपर इसका आंसर है। और मेरे नोट्स भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर आप देखेंगे तो उसका लेक्चर नंबर तो एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वहां मैंने भी इसको डिटेल में कराया है। बुक भी मैंने बता दिया पेज उसका। कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर फॉरेन गवर्नमेंट्स, सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस का अपेंडिक्स सी, सी सी फॉर कैट, पेज 49, इसके अंदर इसका जवाब आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, राइट डाउन एन ऑफिस मेमोरेंडम addressed to all ministries and divisions asking them to observe more strictly the rules and regulation for inspection and supervision of the working of secretariat and attached departments, subordinate offices as per secretariat instructions। इसका आंसर जो है वो अपेंडिक्स डी के अंदर दिया हुआ है, मेमोरेंडम ऊपर लिखा हुआ है। ये मेरे पास जो बुक है उसमें पेज 61 है, आपका पेज शायद आगे पीछे हो, लेकिन सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन अपेंडिक्स डी एनेक्चर 1 के ऊपर मेमोरेंडम पूरा लिखा हुआ उन्होंने, ये इसका आंसर बनता है। बी पार्ट है, what are the instructions to be observed when a file case is submitted to the prime minister। तो जनाब इसका आंसर जो है वो सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन की बुक जो है वो पेज 78 जो बुक मेरे पास है उसके ऊपर दिया हुआ है। आप सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन की जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसके अंदर इसको आप मार्क कर लें, वहां आपको पेज भी मिल जाएगा जो भी आपकी बुक के पास होगा। तो मेरे पास जो बुक है पेज 78 सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन, तो कंटेंट्स में आप खुद भी देख सकते हैं, आप इसको वहां से नोट कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसका वैसे मैंने भी अपने एक लेक्चर के अंदर आपको कि कैसे फाइल पुटअप करनी है वो चीजें मैंने भी दी हुई हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज समरी बनानी है आपने 150 और 60 वर्ड्स के दरमियान। समरी के ऊपर मैं आपको बहुत काफी डिटेल में सजेशंस, इंस्ट्रक्शंस, प्रपोजल, सजेशंस दे चुका हूं, वो पढ़िए। और प्रैक्टिस जो है वो भी मैंने करवाई हुई है। तो ये मैंने ह्यूमन राइट्स जो है इसका मैंने सॉल्व भी आपको कराया हुआ है, तो प्लीज इसको देखिएगा और उन इंस्ट्रक्शंस की रोशनी के अंदर आप इसका जवाब तलाश करें। तो आप इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आज मैं आपको 15 मिनट पहले छुट्टी दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कभी जिंदगी में कहीं मुलाकात हो सकती है एक दूसरे के साथ। मुनसिफ खान कहता है क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट कर दें। तो मुनसिफ क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस जो है इसका पेज जो नहीं है मेरे पास,
क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसके पेज नंबर डिफर कर रहे हैं, तो आप जस्ट ये लिखें सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन के जो कंटेंट्स हैं, एक दो पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, तो उसमें अपेंडिक्स ई के ऊपर ये तीनों चीजें जो हैं वहां लिखी हुई है। ए पार्ट की ओपनिंग ए न्यू फाइल, रेफरेंसिंग और मूवमेंट ऑफ फाइल्स। और बी पार्ट जो है उसकी मैंने रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको दिया है। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस पेज 6 जो मेरे पास है वहां देखिएगा। और सेक्रेटेरिएट जो लेक्चर मैंने दिया है, लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1, उसमें भी इसका जिक्र है। फेडरल प्रोसेस कमीशन, बी दूसरा पॉइंट है बी पार्ट का, सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस अपेंडिक्स बी, पेज 26 मेरे वाली बुक के अंदर है। पर एनी हाउ आप कंटेंट्स जो हैं एक दो पेजेस पर मुश्तमिल हैं, आप उसमें से ये सारे सवालात अपने वहां टिक मार कर लें किस पेज के ऊपर दिए हुए हैं। फिर कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर फॉरेन गवर्नमेंट्स, ये भी सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन अपेंडिक्स सी, पेज 49 जो मेरे पास बुक है उसके अंदर है। तो आप ये कितने 1.5 2 पेजेस के कंटेंट्स हैं, उसके अंदर आपको इजली ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। आई गेट परमिशन फ्रॉम यू पीपल नाउ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पेपर के बाद मुझे बताना है कैसा हुआ, आपने मैसेज करके बता देना है। रिजल्ट आए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।